Hello everyone, good morning. Welcome back in the topic probability. See how simple the topic is. Almost by tomorrow we'll be completing this topic, right? We have almost completed the part that what was required in the beginning, and then we started understanding different type of question, and that's it. The topic is done. Today we will be discussing some difficult question based on your type of playing cards and some extra types we'll be discussing. But before that we go for that, this last question which we skipped in the previous video, that will complete. That is when two dice are thrown. These two questions were left. I remember that when two dice are thrown, you need to find a multiple probability of having multiple of 2 on the first number and multiple of 3 on the second one. So how will you find out that? So we were having the list of all those set 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6. Actually we can keep you can also keep that in front of you right now, because I am not going to write and waste my time now. I'll be just writing what comes here. So let A be the event of getting दिस ऑल, ये जो है ये यहाँ पे आएगा. सो आई विल बी जस्ट डूइंग दैट. ओके, सो मल्टीपल ऑफ टू इन ऑन द फर्स्ट वन, तो यहाँ पे आना चाहिए मल्टीपल ऑफ टू. तो पॉसिबल वैल्यूज आर 2 4 एंड 6. ओके, एंड इन द सेकेंड डाइस यू नीड मल्टीपल ऑफ 3, सो 3 and 6. It should be 3 and 6 multiple of that. So you need this here 2 4 6. So we have here the column of 2 4 6. Alright, one is like 2 comma 1, 2 comma 2, 2 comma 3, 2 comma 4, 2 comma 5 and 2 comma 6, right? And then 2 4, so 4 comma 1, 4 comma 2, 4 comma 3, 4 comma 4, 4 comma 5 and 4 comma 6, and last one is 6 comma 1, 6 comma 2, 6 comma 3, 6 comma 4, 6 comma 5 and 6 comma 6. Only in these three rows I will be looking for the number. Because why did I choose these three rows? Because the first number should be 2 3 2 4 and 6, and that's what we can see here. The first number is 2 4 and 6. Second number should be 3 and 6. So this is what my number required is, and this is what my number is required. Okay, so 3 and 6, so 4 comma 3 be also possible. Here is also 4 comma 6. So 6 comma 3 is possible and 6 comma 6 is also possible. So you can check whether where I squared the bracket. All that is satisfying the condition that the first number is having multiple of 2 and second number is having multiple of 3, and that's done. So we have only 6 numbers, so 6 upon 36 is my answer, required answer, and the question is done. Clear? Next one is number on second dice is larger than the first one. Number on the second die is larger. Number on the second dice is larger. Second dice is larger. That means what else will come in this? They could try to understand. 1 comma 1 won't come. Number on the second is should be larger. So 1 comma 2, 1 comma 3, 1 comma 4, 1 comma 5 and 1 comma 6 all will come. You can check from that sample space. 2 comma 1 won't come, 2 comma 2 won't come, 2 comma 3, 2 comma 4, 2 comma 5 and 2 comma 6 will come. 3 comma 1 won't come, 2 nahi, 3 nahi, 4, 3 comma 4, 3 comma 5, 3 comma 6. So now you must have understood how you have to do 4 comma 5, 4 comma 6, 5 comma 6 directly, 5 comma 5 won't come, and 6 to nahi hai nahi. So these are the all numbers what we have: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. So there is a 15 terms. 15 by 36 is my probability. See how easy it is, right? Simple, eh? Just counting that what you need to understand. Okay, now before we go for the next sum, I would like to ask you few things that what you must know before we start the next part. So that is what two things I have to ask you. If I roll a dice, the sample space would be 1 2 3 4 5 and 6. So if I want probability of getting 2, is it going to be equal to 1 by 6? And probability of not getting 2. Okay, probability of not getting 2.
probability of not getting 2 will be equal to, in case if I check, so it will be 5/6. Okay, and how to find that? You will say कि 1 2 remaining 1 I'll count and then I'll do it. There is another ways. 1 minus 1/6 also can be the way. Okay, 1 minus 1/6. So what is 1 minus 1/6? 5/6, and that would be your not getting 2. So remember that the total probability, any maximum probability, always remember, maximum probability is 1. Okay, the total probability of getting all these numbers is 1. 6/6, it is 1, right? The maximum probability is 1 and minimum probability is 0. So always the probability lie between 0 and 1. Always and always the probability lie between 0 and 1. The maximum value of any probability is 1 and minimum value is 0. There won't be any value which is 2, probability of any event is 2 or any event is 2.5. ये possible नहीं है, ये wrong है ये. Okay, if I say probability is -1 or -3, ये भी incorrect है. Remember that. Okay, so probability never can be equal to more than 1 and less than 0. So maximum probability is 0. So 1 minus of that will be equal to the answer. Or else we can say that probability of any event plus probability of any not of that event, complement of that event. Complement मतलब not getting A. तो probability of event and not getting A is always equals to 1. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो इसको और इसको ऐड करो तो व्हाट यू गेट 6/6 and that is 1. तो probability of any event and probability of not getting that event is always equals to 1. And this also gives you the answer कि how to find out the probability of not getting an event. ये समझ में आ गया? Of course इसका यूज़ कैसे करना है, कहाँ करना है, that will be discussing while solving the sum. You don't have to worry, but just keep in mind कि ऐसे कुछ तो हमने सीखा था. नेक्स्ट वन, और एक चीज़ हमें देखनी है. If I say that I want a king or a queen, that means I have to take king 4 होते हैं and queen 4 होते हैं, इन दोनों का एडिशन. So the probability would be 8/52. Remember that. Okay, the probability of getting king or a queen, 52 is the total sample space as I know, and then it is 8/52. ठीक है. But in case of queen, if it is a king or a spade card, तो king होते हैं 4 एंड स्पेड कार्ड कितने होते हैं 13. स्पेड वो ऐसे वाला नहीं होता शेप, दिस इज स्पेड. और किंग 4 होते हैं एंड एक कैटेगरी के कार्ड कितने होते हैं 13. तो 13 + 4 इज नथिंग बट इक्वल टू 17. लेकिन ये होगा आपका गलत. ओके, क्योंकि 4 किंग में ऑलरेडी एक स्पेड कार्ड है, स्पेड किंग भी है. और एल्स ये जो 13 स्पेड किंग है, स्पेड कार्ड्स है, उसमें एक किंग है ऑलरेडी. तो यहाँ पे 4 किंग्स नहीं आएंगे, यहाँ पे सिर्फ कितने किंग्स आएंगे 3. सिर्फ 3 किंग आएंगे एंड योर टोटल नंबर इज नॉट 17, इट इज 16. क्यों समझ में आया? आई रिपीट अगेन. देखो, किंग और अ स्पेड कार्ड, तो स्पेड कार्ड तो 13 है तो होते ही है. अभी किंग कितने होते हैं? किंग 4 होते हैं, लेकिन उसमें स्पेड का एक होता है विच इज ऑलरेडी बीन काउंटेड इन दिस 13. सो ओनली 3 आर लेफ्ट, सो टोटल वुड बी 16. रिमेंबर दैट. क्लियर? गॉट इट? सो इट्स वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. चलो, तो कीपिंग दिस इन माइंड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं. देखते हैं यही क्वेश्चन. ओके, अ कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम द पैक ऑफ 2 कार्ड्स. नहीं है, 52 कार्ड्स है. अगेन द सेम थिंग, वो 5 का प्रॉब्लम आ गया था. 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द किंग इज इट्स अ किंग और अ रेड कार्ड. किंग और अ रेड कार्ड. देखो, किंग और अ रेड कार्ड. किंग कितने होते हैं? 4. रेड कार्ड कितने होते हैं? अरे रेड कार्ड हाफ ऑफ द पैक 26. अभी रेड कार्ड में ऑलरेडी किंग्स होते हैं, है ना. कितने किंग्स होते हैं रेड कार्ड में? 26 में 2 किंग होंगे. ट्राई टू अंडरस्टैंड. 2 रेड कैटेगरी होते हैं, 2 किंग होंगे. तो बस यहाँ पे 2 ऐड करना है एंड 28 वुड बी, एंड द प्रोबेबिलिटी इज गोइंग टू बी 28/52. ओके, लिखना कैसे है इट इज़ नाउ अप टू यू. आपको अभी पता है, आई डोंट टेल यू दैट. ओके, 28/52. 28/52 आई कैन शिफ्ट और कन्वर्ट इट. वो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 1 जा, 2 8 जा, 2 4 जा 8 एंड 2 26 जा, अगेन 7/13. ये होगा आपका प्रोबेबिलिटी 7/13. 4 से डिविजिबल था. एनीवे 7/13, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए विल बी इक्वल टू 7/13. अभी नाइदर किंग नॉर रेड कार्ड मतलब क्या होगा? किंग एंड रेड कार्ड छोड़ के लेफ्ट आउट, दैट मीन्स इट इज़ P of A डैश. ये देखो, इसीलिए मैंने वो सिखाया आपको. देखो, आइदर किंग और रेड
का नॉट अगर देखा तो वो होगा नाइदर किंग और नॉर रेड कार्ड, तो इट विल बी 1 - 7/13। आपको कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, 1 - 7/13, तो इट विल बी 13 - 7/13, दैट इज द आंसर, एंड इट वुड बी 6/13। ठीक है, एंड अनदर ऑप्शन इज आइदर किंग और रेड कार्ड का, सॉरी, आइदर किंग और रेड कार्ड का जो भी आपके नंबर था वो था 28। अभी 52 - 28 करोगे तो आपको रिमेनिंग मिलेंगे, नाइदर किंग नॉर रेड कार्ड मिलेगा, एंड दैट यू कैन यूज इट इंस्टेड, राइट। जस्ट गिव मी 1 minute, इट इज गोइंग टू कम इन शॉर्ट टाइम। आ गया, देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये तो हमने किया, 6/13 आ गया, ये तो करेक्ट है। अभी हम लोग क्या करते हैं, देखो, किंग और रेड कार्ड कितने हैं, 28, तो नाइदर किंग नॉर रेड would be remaining of this one, तो 52 - 28, this also can be possible, okay। लेकिन हाँ, ऑलवेज रिमेंबर आइदर किंग और रेड फर्स्ट फाइंड करो, तो ये हो जाएगा आंसर 12 - 8 इज 4 and 1 कैरी एंड 24, ओके, ठीक है, 24 होगा। तो योर आंसर इज सपोज टू बी 24/52, जो नाइदर किंग नॉर रेड कार्ड के लिए जो प्रोबेबिलिटी होगी 24/52, एंड दैट वुड बी 6/13, दैट्स वेरी क्लियर। तो आइदर फॉलो दिस मेथड ऑफ सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम इट, और फॉलो दिस मेथड, एनी वन दैट व्हाट यू लाइक, ओके। तो मैं सब कुछ इरेज कर देता हूँ, सो दैट वी सॉल्व द लास्ट सी क्वेश्चन। वी हैव प्लेंटी ऑफ दिस कैटेगरी, यू कैन प्रैक्टिस इट, नो प्रॉब्लम। हाँ, प्रेजेंटेशन इज अप टू you, I'm telling you again, same like yesterday, how we have done, the same way you have to present in the previous video. Not a face card, try to understand, not a face card. तो पहले फेस कार्ड कितने होते हैं वो देखते हैं। फेस कार्ड सार कितने होते हैं, 12 होते हैं। यू रिमेंबर, किंग, क्वीन, जैक, ये ईच कैटेगरी 3 होते हैं, इंटू 4 कैटेगरी होते हैं ना, स्पेड, हार्ट, क्लब एंड डायमंड, 4 इंटू 3 12 होंगे। नॉट अ फेस कार्ड will be 52 - 12, है ना, राइट, 40। तो therefore probability of getting not a face card, or I can say it as event B, will be equal to 40/52. You can solve this answer, ठीक है, क्लियर। सो वेरी सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं, सिमिलर है वैसे ही है। अ किंग, अ क्वीन एंड अ जैक ऑफ हार्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम द पैक। तो हार्ट के किंग, क्वीन, के ऑफ हार्ट, क्वीन ऑफ हार्ट and jack of heart are not there in the pack, okay। find the probability of getting, तो ये 3 नहीं है, तो मेरा sample space n of s going to be equal to 52 - 3, isn't it? It is going to be 49, बहुत important है, ठीक है। तो getting probability of getting a king, that means first one a, would be equal to 4/49 हो सकता है, क्योंकि किंग होता है, 4 किंग होते हैं, लेकिन एक किंग निकाल दिया है, तो 3/49 समझ लो। अ हार्ट कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हार्ट कार्ड अपॉन द 49 हो गई। हार्ट में से 3 निकाल दिए, 3, तो बच्चे कितने, 10, बिकॉज देर आर 13 हार्ट कार्ड, सो 10/49। नॉट क्वीन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग क्वीन, ओके, सी डैश हम लोग करेंगे या फिर क्यू डैश करेंगे, जो भी हो, यहाँ पे नॉट क्वीन लिखता हूँ। सबसे पहले क्वीन के नंबर्स कितने होते हैं, क्वीन होंगे 3, क्योंकि एक निकाल दिया 3, तो 49 - 3, 49 - 3 अपॉन 49, ये बात समझ में आ गई, तो इट विल बी 46/49। नॉट क्वीन, याद रखो इसको, ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्वीन 3 है, एक निकाल दिया मतलब 3 है। नॉट क्वीन मतलब बचे हुए, किस में से बचे हुए, 49 में से बचे हुए, 42 नहीं है अभी, तो 46/49, सॉरी, नॉट अ क्वीन। नॉट अ रेड कार्ड, पहले रेड कार्ड कितने होते देखते हैं। रेड कार्ड होते हैं 10, यहाँ पे देखो ये है, नहीं ये 10 नहीं है, रेड कार्ड, ओके, टोटल रेड कार्ड, तो रेड हार्ट के 10, 10 + 13 ऑफ डायमंड, तो 23 रेड कार्ड है। नॉट अ रेड कार्ड, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ रेड कार्ड, बहुत सोचना पड़ता है ना, तो 23, 49 - 23 नॉट आएगा अपॉन 49, ये होगा आपका आंसर, ठीक है, समझ में आया। इजी है, काउंटिंग का थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा बहुत कुछ, और प्लेइंग कार्ड्स आपको पता नहीं है
तो थोड़ा सा ये डिफिकल्ट जा सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, आफ्टर दिस थिंग्स आर गोइंग टू बिकम ईजी एंड बिट लॉजिकल। ओके, कुछ मेमोरी वगैरह कुछ नहीं है। डिस्क्स आर नंबर्ड फ्रॉम 25 टू 125। ओके, उसके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं, ऐसे डिस्क है, उसके ऊपर ऐसे नंबर लिखा है 25, ठीक है। ऐसे बहुत सारे डिस्क हैं, 26 एंड सो ऑन। Find one disk has been selected from it and the token you must have observed है ना, टोकन नंबर जैसे डिस्क पे लिखे होते हैं वैसे ही। and one is selected and find a probability that the number which is selected is perfect number, perfect square number। तो 25 to 125 के बीच में कितने परफेक्ट स्क्वायर है ये देखना पड़ेगा। 25 to 125 का 25 ये कितने डिस्क है ये देखना पड़ेगा। तो डिस्क नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस इज गोइंग टू बी इक्वल टू नंबर ऑफ डिस्क, ठीक है। डिस्क जो नंबर है वही होगा नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, है ना। कितने नंबर होंगे वो देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड बताओ कितने नंबर होंगे। यहाँ पे आप लोग दो चीज़ें यूज़ कर सकते हो, एपी यूज़ कर सकते हो या फिर एक फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला है, दोनों यूज़ कर सकते हो। तो फॉर्मूला मैं बोलता हूँ 125 माइनस 25 प्लस 1 इज़ नथिंग बट द नंबर ऑफ डिस्क, ये है फॉर्मूला। 125 माइनस 25 इज़ 100, 100 प्लस 1 101। ओके, नॉर्मली बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, जस्ट सब्ट्रैक्ट करते हैं देन दे राइट 100, बट 100 नहीं होते डिस्क, वो 101 होते हैं। या फिर आपको ये लॉजिकल नहीं लग रहा है तो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन गो फॉर एपी। तो 25, 26 ऐसे नंबर्स होंगे, लास्ट नंबर होगा 125। आपका a इज इक्वस टू 25, d इज इक्वस टू 1 एंड a n इज इक्वस टू 125, ठीक है। तो a n का फॉर्मूला हम लोग पुट करते हैं विच इज़ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n फाइंड करना है आपको, 125 इज इक्वस टू a इज़ 25 प्लस n माइनस 1 इंटू 1, डिफरेंस d इज़ 1। 25 इधर शिफ्ट हो गया तो इट इज़ गोइंग टू बी 100 इज इक्वस टू n माइनस 1। तो n इज इक्वस टू क्या आएगा देखो, 101। देखो वही बोला था ना मैंने, सब्ट्रैक्ट करो एंड प्लस 1 कर दो, तो वही है वो बेसिकली। देखो सब्ट्रैक्ट किया एंड प्लस 1 कर दिया, बेसिकली वही है। तो नंबर ऑफ डिस्क, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस इज गोइंग टू बी 101। हाउ मेनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आर इन बिटवीन? परफेक्ट स्क्वायर नंबर between these two numbers, तो 25, हाँ इंक्लूडिंग these two numbers, फाइन। तो 25, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144 विच इज़ अबाउ दैट। तो दैट्स इट, ये है परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 25 टू 125, 1 2 3 4 5 6 7। सो लेट ए बी द event of getting perfect square number. So we have number of a will be equal to 7. Therefore what is the probability of getting a? 7 upon 101। of course ये divisible नहीं है, but आंसर यही है। समझ में आ गया? अभी देखो, try to understand how we used AP that you got it. Never directly try to do it. Use AP. This will be helpful for you. And ये वहाँ पे लिख भी सकते हो आप लोग, जैसे आपने AP को यूज़ किया है। हाँ, AP को यूज़ करने वाले और भी सम्स हमारे पास है। कार्ड्स आर नंबर्ड 2 to 202। देखो एपी में हम लोग इन दोनों को यूज़ नहीं करते थे, एंड पॉइंट्स को 2 and 202 को यूज़ नहीं करते, लेकिन इसमें करना है यूज़, क्योंकि वो लिखे हुए नंबर्स हैं। ऐसे कार्ड है उसके ऊपर 2 3 डैश 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 ऐसे लिखा हुआ, उसके ऊपर 202 ऐसे लिखा है। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टेड कार्ड टू बी इवन नंबर क्या हो सकता है? तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, कितने नंबर से देखते हैं। तो 2 3 डैश 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 202 इज़ अ AP, राइट। सो an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डायरेक्टली करता हूँ मैं, an इज़ 202, a इज़ 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 1। देखो 1 है ना, 3 माइनस 2 1, ठीक है। 2 इधर शिफ्ट हो गया तो 200 हो गया, 200 प्लस 1, राइट ना, बराबर ना, n माइनस 1। तो n विल बी इक्वल टू 201। तो वी हैव नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस इक्वल टू 201। अभी हाउ इज़ दैट कार्ड सिलेक्टेड इज रिक्वायर्ड इज नथिंग बट इवन नंबर। इवन नंबर कहाँ से शुरू होता है? 2 4 6 डैश डैश डैश, लास्ट इवन नंबर क्या होगा? 202 होगा ना इवन नंबर इन दिस कार्ड। तो ये भी एक AP है, तो यहाँ पर भी हमें an का यूज़ करना पड़ेगा। an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना आता है? 202, राइट। a कितना है? 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है? 4 माइनस 2 इज 2। तो 2 शिफ्ट हो गया, 200 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। 200 डिवाइड बाई 200, 100 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n। तो मेरा जो भी इवेंट है, देयरफॉर
probability of A is going to be, which is getting even number, is going to be equal to 101 upon 201, and that's the answer. बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, इंटरेस्टिंग है ना? इट्स गुड, इजंट इट? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। अभी ये हमने किसके देखे? एपी के देखे, एपी यूज़ करने वाले क्वेश्चन देखे। प्रेजेंटेशन आपको करना है ठीक से, लेकिन देयर आर 3 रेड बॉल्स, 5 ग्रीन बॉल्स एंड 4 ब्लू बॉल्स। टोटल नंबर ऑफ बॉल कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग कितने होंगे? 3 + 5 8 + 4 12 होंगे। दैट इज माई नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। तो 12 बैग्स है टू बी सिलेक्टेड। इफ द बॉल सिलेक्टेड द बॉल इज सिलेक्टेड फ्रॉम इट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द रेड बॉल, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, देखो ना, रेड 3 ने, 3/12 1/4, देखो कितना ईजी है। नॉट अ ग्रीन बॉल, ग्रीन नहीं चाहिए मुझे, ग्रीन नहीं चाहिए, तो 7 प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन का नॉट, मतलब नॉट ग्रीन भी लिख सकते हो या फिर जी डैश मैंने लिखा है, तो 7/12, 3 + 4 7। नाइदर ब्लू नॉर रेड, मतलब ब्लू भी नहीं चाहिए, रेड भी नहीं चाहिए, मतलब ग्रीन चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कितना था? 5/12, दैट्स इट। कितना ईजी है, देखो कितना सिंपल है, कुछ भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। प्रेजेंटेशन आपको लेकिन करना पड़ेगा। लेट आर बी द इवेंट ऑफ गेटिंग रेड बॉल, लेट जी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग नाइदर ब्लू नॉर रेड, वो लिखना पड़ेगा। लिख के फिर आप लोग ईजिली लिख सकते हो एंड ईजिली यू कैन शो द सम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हो गया ऑलमोस्ट, कल हम इस टॉपिक को खत्म कर देंगे। कल थोड़े से HOTS क्वेश्चन देखने वाले हैं। टॉपिक वैसे भी आज ही खत्म हो गया, एज पर द टेक्स्ट बुक द टॉपिक इज टू फिनिश टुडे। हाँ, बट वी हैव टू गो फॉर सम डिफिकल्ट क्वेश्चन एज वेल, तो वो हम लोग कल करेंगे। देर आर 5 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स इन द बैग, ये भी कुछ अलग सा क्वेश्चन है। 5 रेड एंड सम ब्लू है, तो सम जो ब्लू बॉल है, लेट देर बी X ब्लू बॉल्स। तो 5 रेड है, X ब्लू है, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस क्या होगा? 5 + X, मतलब टोटल बॉल जो होंगे उस बैग में, दैट वुड बी 5 + X, राइट। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल कितना होता है? ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी, ब्लू बॉल X है अपॉन टोटल 5 + X इज डबल ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। रेड बॉल की भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करके रखते हैं। रेड बॉल कितने हैं देख लो, 5 रेड बॉल्स है अपॉन 5 + X। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज डबल ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। तो ब्लू बॉल कितने हैं? X अपॉन 5 + X इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट 5 अपॉन 5 + X। देखो 5 + X 5 + X गेट कैंसिल, X विल बी इक्वल टू 5 × 2 10, ये आ गया आपका आंसर। मतलब कितने ब्लू बॉल्स है उसमें? 10 ब्लू बॉल्स है। बहुत लॉजिकल है, डायरेक्ट है। प्रोबेबिलिटी डबल है तो बॉल्स भी डबल होंगे ना, ठीक है। तो इन दिस मैनर यू कैन गेट योर थिंग्स डन। ये तो ईजिएस्ट क्वेश्चन था एज आई बिलीव, एंड अपना जो टॉपिक है दैट इज प्रोबेबिलिटी इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड। So next topic, please let me know which I should take before I finish this topic tomorrow. Okay, so any one of you can just send me which topic I should take the next one. Okay, or we should start the revision. Please send me the syllabus if you have of your PT2 in case, and हम लोग फिर उसका रिविजन शुरू करते हैं, बिकॉज हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट कर दिया है। वेरी फ्यू टॉपिक्स आर लेफ्ट नाउ, ठीक है। आई थिंक ओनली 3 to 4 टॉपिक्स आर लेफ्ट टू कंप्लीट द सिलेबस। ये तो हो चुका अपना सिलेबस ऑलमोस्ट। कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं इफ़ यू वांट, जो इजी है, तो देखते हैं। तो ठीक है, यू कैन जस्ट सेंड मी समथिंग सो दैट आई विल डिसाइड। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू टुमारो।